The blood vessel that carries deoxygenated blood to the right auricle is called as vena cava. Now vena cava can be two types, one is superior and the other is inferior. Superior will get the blood from the head region, from the shoulder, from the neck and from the chest, also the limbs. ठीक है, हार्ट के ऊपर का पोर्शन, हार्ट के ऊपर में चेस्ट का रीजन आ गया, शोल्डर आ गया, नेक आ गया, हेड आ गया। यहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट के लेवल से नीचे का जो अपना ट्रंक पोर्शन और लिम्फ पोर्शन है, यहाँ से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा दैट इज इंफीरियर वेना कावा। एंड बाय द वे वेना कावा इज आल्सो कॉल्ड एज द बिगेस्ट वेन इन द बॉडी। शायद एमसीक्यू में आए तो तुमको पता होना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वेन इन द बॉडी। सारी वेन्स का व्हाट समथिंग सुपीरियर, इसीलिए बिगेस्ट वेन बोला जाता है इसको। ये आ गया। इसके बाद हम किस पे जाएंगे? कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस? विच चेंबर? राइट वेंट्रिकल। अभी भी जब ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो थ्रू ट्राइकस्पीड वाल्व इट विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल। वंस इट रीचेस द राइट वेंट्रिकल, this blood will be carried by a blood vessel to the lungs. Okay? Now of course this will go and bifurcate into two because we have a pair of lungs. मैंने सिर्फ एरो स्कीमेटिक के लिए ड्रॉ किया है, but we will divide and bifurcate into two branches. However, this blood vessel is called as pulmonary artery. याद प्लीज रखना पड़ेगा तुमको। This is called as pulmonary artery. The word pulmonary relates to lungs. Okay? And pulmonary artery, अब ये artery कैसे याद रखोगे? That artery is always carrying inferior vena cava. क्या हो गया उसका? Inferior vena cava में trunk याद रखो और trunk and limbs. Trunk का मतलब abdomen हो जाएगा, pelvic girdle हो जाएगा और limbs हो जाएगा। Inferior lower body से heart में और superior vena cava upper body से heart में। ऑरिकल का दूसरा नाम क्या है? एट्रिया और एट्रियम, ATRIA, ATRIUM। ओके, तो मैंने अभी क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी। प्लीज रिमेंबर, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ओनली दिस इज द आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर तुम पूछोगे कि ये ऐसा क्यों लेके जा रहा है, तो तुमको ये समझना पड़ता है कि क्यों ऐसा नाम रखा। हम वेन भी बुला सकते थे इसको, क्यों पागल बन करके एक आर्टरी को ऐसा रख दिया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। व्हाटएवर इट इज। नाउ लिसन, आर्टरी जब तुम पढ़ोगे तो उसका वॉल थिक होता है, तो हमको कोई ऐसा चाहिए था जो ब्लड वेसल थिक वॉल का हो। क्यों? क्योंकि इज इट कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे वेन होता हमारे यहाँ पे, तो वेन तो रप्चर हो जाता है ना। So please remember, pulmonary artery will carry deoxygenated blood from heart to the lungs. Okay, and it is the only artery that carries deoxygenated artery against the normal arteries in the body. Okay, अब इतना अगर हो गया तो यहाँ पे when the blood, deoxygenated blood reaches to the lungs, oxygen is added, so that blood converts into oxygenated blood. Hence I have put a green chalk over here that shows this blood is oxygenated. Now from the lungs, the oxygenated blood is carried to the left auricle, and this blood vessel is called as the pulmonary vein. दोनों आर्टरी कैसे हो सकता है? ठीक है, pulmonary vein. Again the word pulmonary relates to lungs. Okay, और वो आर्टरी था तो ये vein है। Easy? Next up, when it comes here, when it is received in the left auricle, through the bicuspid valve, it will be reaching to the left ventricle. Once it is received here, this is where the pure blood has collected. तो ये जो pure मतलब oxygenated blood है, ये कौन लेके जाएगा? The aorta will carry it to the body parts. This is called as aorta. Aorta is also called as biggest artery in the body. Please याद रखना। समझ आया? ओके, नाउ कुड यू सी कि यहाँ से जब ब्लड गया तो डीऑक्सीजनेटेड था, है ना, और यहाँ पे आया तो ऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ पे कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड।
After one whole circulation it turned into oxygenated, it was received. So this one round of deoxygenated to oxygenated, ये conversion के लिए उसी blood को heart में से 2 बार जाना पड़ा. कैसे 2 बार? Can you see? Look at the tracing that I'm doing. It went like this. एक बार, फिर वापस वो blood ऐसे आ गया यहाँ से. समझ आया? So the blood has to move twice through the heart, and hence this system is called as double circulation. So there is a circulation that happens between heart and lungs, and there is a circulation that happens between heart and body. तो नाम क्या होगा? जो हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, and this is called as the systemic. Please do not write it as systematic. तो जल्दी जल्दी आप हाइडर में लिख दोगे तो सिस्टमैटिक. प्लीज राइट इट एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक है? बॉडी से राइट मतलब बॉडी से the circulation that occurs between the lungs and the heart is called as pulmonary, and the circulation that occurs between heart and body is called as system. Heart is constant, है ना? सिर्फ ये वाला चेंज होगा. ओके, तो ये याद रखना. मैंने वैल्व्स मिस किया है और मैंने कुछ ब्लड वेसल मिस किया है, और मैंने उसके आगे वाला तुमको पार्ट सिखा दिया है दैट सेज अबाउट डबल सर्कुलेशन. ओके, सिस्टेमिक और कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन. हो गया? पल्मोनरी का क्या बोला आपने? Pulmonary circulation is the circulation of blood between the heart and the lungs. Pulmonary word समझ आ रहा है तुमको? Pulmonary. अच्छा, तुमको पता ही नहीं हो? पल्मोनरी तो सबका ही है ना. मतलब पल्मोनरी आर्टरी Pulmonary basically means lungs से related. याद रखना. ठीक है? ये सारी terminology है. Somebody says there that XYZ person is suffering from a pulmonary disease, that means they're suffering from a lungs disease. ठीक है? If we say hepatic का मतलब होता है liver. समझ आया? Portal relates to stomach and intestine. समझ आया? और दूसरा क्या होता है? Neural पता होगा तुमको? Neural is brain या spinal cord, है ना? ये समझ आया? ओके, मैं इस पे वापस जा रही हूँ. Can you see that from right ventricle the pulmonary artery starting? ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना. यहाँ पे कुछ तो फ्लैप जैसा वाल्व होना चाहिए. So there is a valve that guards the opening of the pulmonary artery. Actually इधर होता है, पर schematic diagram में मैं यहाँ कर रही हूँ. तुमको मैं दिखाऊंगी हार्ट में कहाँ होता है. अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ कर रही हूँ. This is called as the semilunar pulmonary. Yes, वही जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे तो कुछ काम नहीं है. Semilunar pulmonary क्या लिखा आ गया? तो पता नहीं अब Pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valve. And यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? रुक जाओगी, I'll take you down. This is aorta. Aorta का भी start किसी को तो guard करना पड़ेगा ना. It's like a door. So यहाँ पे भी there is a valve. This is also called as aortic, क्योंकि aorta है ना. So aortic semilunar valve. Now please understand, when I say semilunar valve, the word semi means half, lunar means moon. तो crescent shape पता है? Yes. वैसा होता है. So this is the, ये तो ऐसा valve. ये एक और ये दो. They open like this. समझ आया? तो ये पल्मोनरी आर्टरी से शुरू कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व. ये भी वही शेप का है, पर ये एओर्टा को स्टार्ट दे रहा है, तो एओर्टिक सेमिलुनर. यस प्लीज. हां, वो क्या होता है? नाउ फाइंड इन योर हां एट्रिया राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में रहता है. हां, ये होता है सेप्टम. किया था हमने? नहीं, आपने कुछ तो और ही बोला था. सेप्टम नाम है उसका, बट ये पूरे को हम सेप्टम बोलते हैं. अब सुनो, ये पूरा सेप्टम है, पर इसी सेप्टम का ये अगर पार्ट लूंगी तो ये पार्ट किसके बीच में फॉल हो रहा है? दो ऑरिकल के बीच में. तो इसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम. इंटर क्यों? दो के बीच में तो इंटर ऑरिक्युलर और सेप्टम है.
हाँ। और ये दो वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तुझे वो नाम ही नहीं है तो क्या? मेरा डाउट ये था कि उसके बीच में एक वाल्व रहता है, वो क्या रहता है उसका नाम? ट्राइस्पीड और बाइस्पीड। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ वही था। तो वो यहाँ है, वो यहाँ नहीं है, ये तो सेप्टम है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, दिस इज ट्राइस्पीड एंड बाइस्पीड। ये तुमने ड्रॉ भी नहीं किया था, ये वाला डायग्राम तुमने ड्रॉ किया है? ये नहीं किया है। ये किया है। ये है। ये वाला नहीं किया ना? सेम ही है। ये हाँ, वाला तो फिर तो है। तुमने कैसे नहीं किया? मैंने तो ये वाला डाटा दिया। मैं किया था पेपर। ठीक है, चल। तो वैल्व हो गया। कितने वैल्व हुए अपने? इनके बताओ। टोटल वैल्व्स हमने कितना दिया? चार में चार। प्राय 4 वैल्व्स किए। और ब्लड वेसल्स कितने किए हमने? 3। अभी तो 2 से 4 बॉल में। आप देखो, मैं जो लिखा रही हूँ लिखो। एक सेकंड जल्दी। अच्छा वहाँ नहीं लिखोगी बेटा, वहाँ लिखोगी तुम। हाँ, लिखो वेल्व्स, वेल्व्स इन द हार्ट, वेल्व्स इन द हार्ट। प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ वेल्व्स। VALVES. Very good. Proud of you. VALVES, valves in the heart. लिखा? हाँ। Number 1, 2, 3, 4. Number 1 will be tricuspid. Then we have bicuspid. पूरा लिखो tricuspid. What do you want? Pencil, pen, what do you want? I'll give you. Bicuspid, tricuspid, pulmonary semilunar valve. और मेहरबानी करके valve भी लिखो, लिख ही रहे हो तो bicuspid valve पूरा लिखना। और फिर क्या लिखोगे? pulmonary semilunar लिख दिया और aortic semilunar valve। कितने valve पढ़े मतलब हार्ट के अंदर हमने? 4। याद रहेंगे? ओके। Without looking into your book and without looking on the board, write the location for the same. Dash डालो और सामने एक brief location नहीं, बहुत crisp location है। एक का मैं दे रही हूँ, बाकी तुम लोग लिखो, ठीक है? लास्ट वाले का दे रही हूँ। Aortic semilunar valve guards the GUARDS guards the opening of aorta. Full stop, bracket में डाल दो left ventricle. Bracket में left ventricle. This is solely done by you, so I'm hoping that you will remember this. Opening of the aorta and bracket में write left ventricle. Please don't be shabby in your work. अभी बाकी 3 लिखो। लिखो bicuspid अगर नहीं लिखा है, tricuspid नहीं लिखा है तो tricuspid between the right auricle and the right ventricle. Bicuspid between the left auricle and left ventricle. C is written. And next we have pulmonary semilunar. It guards the opening of the pulmonary artery. Excellent. And कौन सा लिखोगे ब्रैकेट में? राइट वेंट्रिकल। और इसका तो मैंने दे दिया था तुमको। ना ओपनिंग और Guards the opening of right ventricle. left गार्ड्स में Guards the opening of what? Pulmonary artery. हाँ, मैंने ओए, समझ आया? नहीं, वो गलत हो गया। ओके? तो ये हो गया। अब वैसे ही नीचे लिखो ब्लड वेसल्स। इसका मैं लोकेशन नहीं बता रही हूँ तुमको, सिर्फ नाम। पल्मोनरी आर्टरी। नहीं, हाउ कैन इट गार्ड्स का मतलब क्या? उसको पूरा का पूरा वो क्या बॉडी गार्ड है उसका? ओपनिंग। तो फिर सिर्फ लिखो ब्लड वेसल्स कौन से है, उसका लोकेशन कुछ नहीं लिखना तुमको, सिर्फ लिखो ब्लड वेसल एज अ टॉपिक एंड राइट 1 2 3 4। नो माय डियर, आई हैव नॉट टॉट यू दैट। रुको इसमें मैंने जो पूछा लिखो, मैं साथ में बता रही हूँ। आई एम नॉट लिविंग इट टू यू। राइट ब्लड वेसल नंबर 1 वेना कावा। हाँ, उसको ऐसे लिख दो चाहिए तो, ब्रैकेट में सुपीरियर इंफीरियर लिखो, मतलब ये हमने कर दिया है तो तुमको याद रहेगा। ब्लड वेसल में फर्स्ट ईयर रिटन वेना कावा, इन ब्रैकेट राइट सुपीरियर इंफीरियर। सेकंड यू विल राइट pulmonary artery, pulmonary artery. Third you will write pulmonary vein, and fourth you will write aorta. इसका function ठीक है, अब
अभी लिख दिया इतना। हाँ। अभी इसका देखो तुमको फंक्शन पूछा जा सकता है हाँ। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि which type of blood it carries. हाँ। So if you leave it to me, I can make 10 questions इतने में ही। तुमको समझ आ रहा है? जैसे अगर मैंने तुमको पूछ लिया कि वेना which is the biggest vein? Vena cava. Which type of blood does the vena cava carries? Deoxygen. Deoxygenate. समझ आया? Vena cava has two types. Which are the two derivatives of two types? Superior and inferior. Which type of blood does pulmonary artery carry? Deoxygenated. Pulmonary artery carries blood from where to where? Heart to Right lungs. to lungs. तुम कहाँ रहते हो? अगर ये मैंने पूछा तो you cannot tell me Mumbai or Maharashtra. You have to give me an exact address. Where say right ventricle to lungs. Okay, this will carry the oxygenated blood from lungs to the left auricle, and then the left ventricle will pump out the blood to the body parts through the aorta. So this also carries oxygenated blood. समझ आया? हार्ट का पूरा पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस टाइप का ब्लड है उसमें और कौन कहाँ से क्या कैरी कर रहा है। So I have given you 4 blood vessels so far, and I break that thumb. 4 blood vessels and 4 valves. इतना हो गया. Now there are additional 2 blood vessels and then I give you a little break. Listen to me. We have 2 blood vessels more. These are called as coronary. Did we do coronary? No. So far? No. वो कैसे हाँ बोल रहा है? स्कूल में हुआ होगा। The word coronary relates with heart. तो मैं चाहे coronary disease बोलूँ या cardiac disease बोलूँ या simple heart disease बोलूँ, मतलब एक ही होता है। The word coronary कर दिया नहीं? The word coronary इतना बहस किया उतना हो जाना। The coronary word means related to heart. So there is a coronary artery and there is a coronary vein. Look on to the diagram that's given up here. This diagram are you able to see? ये external structure है, दिख रहा है? External pencil देखो। बुक नहीं है। ठीक है? अरे बुक नहीं है? चलो उसकी लोगो देखो। ये देखो। Can you see this red color? ये रेड और ये ब्लू है ना? एक तुम्हारा ये कौन सा साइड? हाँ ठीक। पर अगर ये हार्ट है तो ये कौन सा साइड है? इतना तो बताओ। ये वाला